you all. How are you? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning to you all. कैसे हो आप सब? Fine. Okay. You all should stay fine. Okay. Let's do prayer. Let's do some meditation. Close your eyes. Join your hands. Don't look here and there. Okay. Concentrate. Raghav, join your hands. Close your eyes. Harshit, I cannot see you. Switch on your video. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Leah. Very good morning to you all. Join your hands. Close your eyes. Harshit, close your eyes. Join your hands, Khushi. Eyes closed. Okay, now open your eyes. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Very good morning to you. Okay, shall I start the EVS session? In this class, we are going to do EVS work. Okay, that I have already. Yes, this is EVS class. Fine, fine. Okay. Okay, now I am sharing worksheet with you. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. सभी बच्चे म्यूट करेंगे प्लीज. Okay, so this is our worksheet of lesson 9, shelter. Look at this carefully. These are difficult words. Okay, these are difficult words. Now I'm going to ask anyone to read the words. Okay, these are difficult words. These are 10 words. Now I'm gonna call the name and they have to read the words. Okay, please mute yourself, Yatharth. Arohi, unmute yourself. मैम रीडिंग करा रही है टॉप वर्ड. Arohi, unmute yourself, beta. Now read the first word, Arohi. Read the first word.
shelter. Okay, now I'm going to ask the next student. आपने कल रीडिंग की थी? Yesterday you read? कल आपने रीडिंग की थी, चैप्टर रीडिंग? आद्या? Reading. Yes or no? Yes. आद्या कल आपने रीडिंग की थी? आद्या आचार्य, आई एम आस्किंग यू. मैंने तो की थी ना. No. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. म्यूट योरसेल्फ. अंश गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ अंश. I request everyone to Yes, please ma'am. mute. Ansh, now you will read the second word. Please read it out. Read the second word. Room. No. Read the spelling properly. Spelling के साथ read करो. तुम. Read the spelling बेटा. S T पूरा read करो. एक एक करके बता. STOM. STORM. Storm. बोलो storm. 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 Good. Storm. Storm. Storm का क्या मीनिंग होता है? तूफान. हाँ, आंधी तूफान. Good. Now mute yourself. Devansh Kataria. Unmute yourself. Devansh. Read the third word. Read करो. Devansh, read the third word. ये बिग वर्ड है, ठीक है? तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी आप रीड कर सकते हो. Third word read करो. Parents, please don't help him. Please don't help him. Let him join the words. Ma'am, permanent. बेटा मुझे लग रहा है आपके पेरेंट्स ने आपकी हेल्प की है, बिकॉज आई कैन हियर फ्रॉम द बैकग्राउंड. आपको जो बिग वर्ड्स होते हैं उनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रीड करना है. जैसे ये परमानेंट है, इसको कैसे रीड कर सकते हो? PER पर, MAN men, ENT एंट, परमानेंट. ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखो. प्लीज डोंट आस्क योर पेरेंट्स. ठीक है, रीड करो, ट्राई करो, उसके बाद नहीं आता है देन वी कैन लेट यू नो. हम आपको बता सकते हैं, मैं या आपके पेरेंट्स कोई भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर पहले आपको ही ट्राई करना पड़ेगा. ऐसे नहीं चलेगा. नाउ म्यूट योरसेल्फ देवांश. कोविड, read number 4. Kritika, you will read number 5. Okay, COVID, read number 4. COVID, beta, read number 4. Yes, ma'am. Read number 4. I request everyone to please keep yourself on mute. Rishti, mute कीजिए please. Yes, COVID, now tell me. पक्का. PUCCA पक्का. Okay. Kritika, read number 5. Wait, Kritika, wait. पहले मैं म्यूट कर रही हूँ. Wait. जो अनम्यूट रहेगा मैं उसको नहीं पूछूंगी. सुहानी, यू ऑलवेज स्टे अनम्यूट. मुझे नहीं समझ आता क्यों. आई ऑलवेज से टू म्यूट योरसेल्फ. आद्या अनम्यूट हो गई. व्हाई? आई विल नॉट आस्क दोस चिल्ड्रन हु आर ऑन म्यूट. हु आर ऑन अनम्यूट. कृतिका, बेटा आप पढ़ो नंबर 5.
C-E-M-E-N-T. Cement. C-E-C-M-E-N-T. Ment. Cement. Okay. Say cement. Cement बोलो. हाँ, सीमेंट क्या होता है? वो जो, हाँ, जो हम ब्रिक्स के बीच में लगाते हैं सीमेंट को, ताकि हमारा घर जो है बहुत मजबूत बने, है ना, स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. ओके, नंबर 6. हु विल रीड? वेट. नव्या पांडे, प्लीज रीड नंबर 6. नव्या पांडे. कृतिका म्यूट करो बेटा. म्यूट. नव्या पांडे, रीड नंबर 6. Okay. हाँ. Temporary. गुड, वेरी गुड. टेम्परेरी. टेम्परेरी. जो टेम्परेरी हो, जो स्टेबल ना हो, लाइक जो कभी भी आ जा सकता है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, जो टेम्परेरी है, लाइक, ठीक है, जो जैसे ये हमारा कोरोना वायरस चल रहा है ना, कोविड-19, इट्स टेम्परेरी. आवर ऑनलाइन क्लासेस आर देर के लिए. हाँ, जो थोड़ी देर के लिए होता है, एग्जैक्टली, जो थोड़े कम समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है जो, ठीक है, दैट इज टेम्परेरी. ओके. Mehul, unmute yourself and read the seventh word. Read. Mehul, unmute yourself, beta. Kuccha. कच्चा. Very good. Kuchcha, ना कि CCHA. Okay. Kuch, kach, CHA, cha, kaccha. Okay. Is that okay? Yes, ma'am. Good. Okay. Pradyuman, you read the number 8. Pradyuman Shukla. Yes, ma'am. Wait, Pradyuman. Now you read. मैम, इसमें कच्चा में की मैम इग्लो. Igloo. 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 Very good. Igloo. Good. Okay, next. Rudransh, you will read next. Rudransh, read number 9. STILT. Yes. Stilt. Say stilt. Stilt. Good. Okay, number 10. Who will read number 10? Okay, Leah wants to read. Okay, wait, Leah, wait. Yesterday you read ना, आपने कल पढ़ा था ना, Leah. Give someone else some chance, है ना? Vihan will read the 10th one. Vihan Rawat. Vihan, read the 10th word. Ma'am, sunlight. Good, Vihan. Very good. This is sunlight. Okay, so we have done with the hard words. These 10 hard words you have to read and write. And I expect everyone to do this. Okay, and I will ask you to submit this assignment on MST. I will create assignment for this. And ये notebook में करना है. हाँ, ये notebook में करना है. ऊपर लिखे है ना, अभी हम आगे भी करेंगे questions. Difficult words. Yes. 7 वाला है ना, 4 and 7. इसकी Yes. meaning क्या है? Wait, I'll tell you.
4 इज पक्का. पक्का का मीनिंग होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग. पक्का हाउसेस कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में. यू आर देयर. आपके पक्का हाउसेस. ओके, सो पक्का हाउसेस आर द वंस विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो ब्रिक से सीमेंट से बने होते हैं. दे आर परमानेंट. ओके, वो हमेशा के लिए होते हैं, बहुत ज्यादा समय के लिए होते हैं, राइट, अनलेस हम उनको खुद ना तोड़ें. ओके, दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. पक्का मीन्स स्ट्रॉन्ग. ओके, and the 7 is kacha. Kacha is all again is a Hindi word, but we used it here in EVS. Kacha again is very weak. Weak हो और which is not permanent, जो हमेशा के लिए ना हो. कल मैंने आपको समझाया था जो houses straw से या फिर stick से बनते हैं, mud से बनते हैं, they are called kacha houses, right? Okay. So this is called kacha. Okay, so these are 10 difficult words which you have to write and एक बार 9 वाला explain कर दो. wait एक मिनट. 9 stilt houses. मैम ने आपको stilt houses के बारे में बताया था चैप्टर में, जहां बहुत हेवी रेनफॉल होता है. वो हाउसेस जो बल्लियों पे बनाए जाते हैं, ऊंचाई पे, जो हवा में लाइक स्टिल्ट्स के सहारे जो खड़े रहते हैं, जहां बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है, वहां पे ये हाउसेस को बनाया जाता है, सो दैट इनके अंदर पानी ना घुसे और लोग आराम से रह पाएं. ओके ओके, वेरी गुड. Anyone else wants to ask something or we should move forward? Okay, so question A, difficult words. You have to read, write and learn, and you have to do this work in your notebook, and I will create an assignment for this. You have to submit the assignment by Sunday. Now question number B, fill in the blanks using the words given in the box below. Now look at the words first. जो words हैं पहले हम वो read करेंगे. First word is villages. 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 Second word is towns. 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 Third word is sloping. Sloping का meaning होता है जो स्लोप में बना हो, कोई चीज जो स्लोप वे में बनी हो, स्लोपिंग. फोर्थ इज गैरेज. कार्स, जहां हमारी, बेटा पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं उसके बाद आप पूछना प्लीज, ठीक है? Okay, ma'am. So garage are the places where we used to keep our vehicles. जहाँ पे हम अपने vehicles, अपने बाइक्स, अपने कार्स वगैरह रखते हैं, जिनसे हम ट्रैवल करते हैं. सीमेंट वो सब्सटेंस है, एक तरह की रेत कह सकते हैं इसको, जो हम घरों को बनाने में यूज करते हैं. ओके, सो लाइक हम इससे स्ट्रॉन्गर हाउसेस बनाते हैं सीमेंट से बेसिकली. ओके, सो दीज आर द 5 words which you have to fill in these 5 fill in the blanks. Villages आपको पता है गांव होते हैं, ठीक है? Towns जो होते हैं वो बेटा गांव से बड़े होते हैं, like bigger than the villages. Towns basically पूरी तरह से आप शहर भी नहीं कह सकते हो, but they are bigger than the villages, and towns में भी हमारे पक्के घर होते हैं. Okay, sloping is the slope, like इस तरह से जो slope है, जब houses इस way में बनते हैं, I'll show you on the picture. ऐसे में बनते हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्लोपिंग हाउसेस. ओके, इस स्लोप में बनते हैं, सो दैट जहाँ पे हैवी रेनफॉल और जहाँ पे आपका स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो अगर इस स्लोप पे हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल होगा तो वो नीचे स्लोप हो जाएगा, इट स्लाइड्स ऑफ. ठीक है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो हमारे जो घर की छत होती है उस पे पानी नहीं जमा होता, उससे क्या होता है, घर सेफ रहता है. ठीक है, so this is called sloping.
गैरेज आई हैव टोल्ड यू, गैरेज वो होते हैं जहां पे हम अपने व्हीकल्स खड़े करते हैं. सीमेंट आई हैव टोल्ड यू, जिससे हम पक्के घर बनाते हैं. नाउ वी विल फिल द ब्लैंक्स. अ हाउस विद डैश रूफ इज फाउंड इन द हिल्स. नंबर 1, दृष्टि, यू विल टेल मी. A house with dash roof is found in the hills. कौन सा ऑप्शन आएगा दृष्टि? Which option will come? मैम जहाँ पे वो होते हैं, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे ऐसे घर बनाते हैं. नहीं, that is fine, but I am asking जो fill in the blank है उसमें 5 words ऊपर दिए ना क्लाउड के अंदर, इनमें से कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे? Which word will fit here? मैम दिख रहा, हाँ? वो दिख रहा, 2 ही वर्ड्स दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा. 2 क्लाउड words दिख रहे हैं. अभी ठीक है? अभी देखो, is that fine? नो मैम. ऐसा क्यों हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं आई लास्ट समवन एल्स. ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, मेरी स्क्रीन पे तो सारे वर्ड्स दिख रहे हैं. ओके, समर, समर अनम्यूट योरसेल्फ. वैभवी अनम्यूट योरसेल्फ. समर, वैभवी. Summer, tell me the first one. A house with dash roof is found in the hills. Hills. Hills में कैसे नहीं होते? किस तरह की रूफ होती है हिल्स में? जो रूफ होती है किस तरह की होती है हिल्स में? आपको ऑप्शंस दिए हैं बेटा. विलेजेस, टाउन्स, स्लोपिंग, गैरेज और सीमेंट. Okay, it's okay. I'll tell you. A house with sloping roof is found in the hills. अभी मैम ने बताया आपको हिल्स पे बहुत हेवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है. So we have sloping roofs there. Okay, हमारे पास sloping roofs ऐसे करके, अभी आपको दिखाया था बुक से मैंने, इस तरह की रूफ होती है, राइट? सो दैट उसके ऊपर पानी या फिर बर्फ कुछ भी नहीं टिकती है. इट स्लाइड्स ऑफ, वो नीचे को स्लाइड कर जाती है, गिर जाती है. ओके, सो नंबर 1 में आंसर इज अ हाउस विद स्लोपिंग रूफ. नंबर 2, वैभवी, यू विल टेल मी. अ कच्चा हाउस इज फाउंड इन द डैश. वैभवी, Yes. कच्चा हाउस इज फाउंड इन द डैश. What will come here? कच्चा हाउस आपको कहाँ पाए जाते हैं? कच्चा हाउसेस I cannot see, I cannot hear Vaibhavi at all. Swastik, please tell me. Swastik, Sharanya, unmute yourself. Yes, ma'am. Swastik, you tell me this one. Number 2. Kacha house is found in the dash. From the options. Kacha houses are found in towns. In the villages, beta, not in towns. Towns and cities में पक्का houses होते हैं. Oh. Okay, kacha houses, the houses which are not strong, which are weak. Okay, इसको ध्यान रखिएगा. Okay, कच्चा houses यानी कच्चा, which are not strong, which are quite weak houses, जो permanent नहीं होते हैं. Okay, so कच्चा houses are found in villages. Number 2 में villages आएगा. Number 3, Satyam, Sharanya, you will tell me number 3. Dash is a grey powder used in making buildings.
बिल्डिंग्स या घर बनाने के लिए इस पाउडर का, इस सब्सटेंस का यूज होता है? आई हैव टोल्ड यू. सीमेंट. Very good. Cement is a grey powder used in making buildings. Okay, ये grey color का होता है substance or powder, whatever you want to say. And हम buildings और जो पक्का houses होते हैं, strong houses बनाने के लिए इसका use करते हैं. Okay, Satyam will tell me number 4. A dash is covered place where we keep our car. Garage. Garage. Good. Now mute yourself. Aradhya Mishra will tell me the last one. A pakka house is found in the dash and cities. Ma'am, towns. Yes, a pakka house. ध्यान रखें, कच्चा houses हमें villages में मिलते हैं and pakka houses we found in towns and cities. Okay, so this also you have to do in your notebook and you have to submit this as an EVS assignment. Okay. Number C. Answer the following questions. ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे मैम को. Why do we need houses? Question number 1. Why do we need houses? हमें घरों की जरूरत क्यों है? Answer is, we need a house as it keeps us safe from heat, cold, rain, winds and storms. ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, रीड किया था. 2 chapters I have taken in the reading. So I expect everyone to read it again, understand the meaning और जो भी आपको confusions हैं उनको आप दूर करो. ठीक है? We need a house as it keeps us safe from heat, cold, rain, winds and storms. हमें घर की जरूरत होती है जो हमें सुरक्षित रखे, सेफ रखे गर्मी, सर्दी, बरसात, हवाओं से या फिर आंधी तूफान से. ठीक है? Question number 2. What are पक्का houses? अब यहाँ ध्यान से देखेंगे पक्का houses क्या होते हैं. What are पक्का houses? A पक्का houses is a permanent house made of bricks, cement, steel and glass. पक्का houses permanent houses हैं जो एक जगह पे stick रहते हैं, जो bricks से बनते हैं, cement से बनते हैं, steel से बनते हैं और glass से बनते हैं. ठीक है? Permanent houses होते हैं पक्का houses. What are कच्चा houses? Question number 3. कच्चा houses क्या होते हैं? मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ, अब सी आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी ये आ गया. What are कच्चा houses? A कच्चा house is a temporary house made up of mud and straw. कच्चा house नाम से ही है कच्चा. Okay, it's very easy. पक्का मतलब strong, कच्चा मतलब weak. Okay, so कच्चा is a house, temporary house. जो temporary house है जो मड एंड स्ट्रॉ से बनता है, मिट्टी से और सूखी तिल्लियों से, डंडियों से, उनसे बनता है. ठीक है? सो कच्चा हाउस इज अ टेम्पररी हाउस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अ होम? इस पे कर लो, टीम्स पे ना, इस पे खोल लो, टीम्स आ चलो. Okay, question number 4. What is a home? घर क्या होता है? The house in which we live is called our home. एक house, एक मकान जिसमें हम रहते हैं उसको घर कहते हैं. ठीक है? मैंने आपको house and home के बीच में डिफरेंस बताया था.
ये आपके सिलेबस में नहीं है, लाइक आपके चैप्टर में बहुत क्लियरली नहीं दिया हुआ, बट आई वॉन्ट यू टू नो, मैं चाहती हूँ आपको समझ आए, सो इस चीज को बहुत ध्यान से सुने। द हाउस, हाउस एंड होम में कंफ्यूज मत हुए। हाउस एक खाली मकान को भी कहा जा सकता है, खाली घर जिसमें कोई नहीं रहता, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस, ठीक है, उसको हाउस कहते हैं। बट जब हम अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ किसी घर में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने किड्स के साथ, ओके, सो दैट इज कॉल्ड आवर होम। वो हमारा घर बन जाता है जिसमें लोग इकट्ठे होके रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, कोई खाली मकान होम नहीं होता, खाली घर को आप होम नहीं बोलते, दैट इज ओनली अ हाउस, ओके। ओके, so question number 4, what is a home? The house in which we live is called our home. Now move to the question number 5. Why does a house need windows? Why does a house need windows? एक घर में विंडोज की क्या जरूरत होती है? एक घर में विंडोज की क्या जरूरत होती है? A house needs windows for air and sunlight to come. एक घर में विंडोज की जरूरत इसीलिए होती है ताकि उसमें फ्रेश एयर और सनलाइट आ सके, ठीक है। डी, राइट नेम्स ऑफ द रूम वेयर द थिंग्स गिवन बिलो बिलोंग टू। राइट द नेम्स ऑफ द रूम वेयर द थिंग्स गिवन बिलो बिलोंग टू। अ बकेट एंड अ मग, ये कहाँ पे होता है, कौन से रूम में होता है बकेट एंड मग? वॉशरूम। Yes, washroom, washroom, bathroom, right? A bed. Where you find a bed? Bed कहाँ मिलता है? मैम बेडरूम। मैम बेडरूम। Very good. Number 3. And a TV. Very good. A sofa set and a TV. Where you see the sofa set and the TV? लिविंग रूम। मैम डाइनिंग रूम। A dining table. The dining room. Dining room. Okay, now move to question E. Match the following. Now you can do it yourself, I think. आप कर सकते हो. There are 5 match the following. Kacha house, stilt house, pakka house, houseboat, and igloo house. Are you able to do it yourself or you want me to explain you? हाँ, आप खुद कर सकते हो इन्हें, या आप चाहते हैं हम explain करें? Okay, let me explain you a little bit. मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ. Please आप लोग म्यूट कीजिए. I request you to please mute yourself. मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. Please mute yourself. हाँ. ठीक है. कच्चा house is number D. Number D is a kacha house. Look at it. It is made up of mud and straw. Right? Number 2. I request you to please keep yourself on mute. Ishani, you are on mute. Number 2, stilt house. Number 2 will match with E. Stilt house is number E. Okay, जो ground से ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ बना हुआ है, ठीक है, that is called stilt house. Number 3 is pakka house. So which one is pakka house? Number 3 will match with A. Pakka house is A. It is made up of big windows and doors, and it is made up of cement. Okay. Number 4, houseboat will match with C, with the house which is made up of on boat, जो boat पे बना हुआ है, पानी में है. Number 5, igloo house will match with B. Igloo. Igloo, you all can see what igloo is. जो बर्फ से बना हुआ, snow से बना, ice से बना हुआ घर. ठीक है? So you all have to do this. Okay, draw a pakka house and a kacha house in your EVS notebook.
ठीक है, अपनी EVS नोटबुक में को ड्रॉ करेंगे एंड वॉच द फॉलोइंग यूट्यूब वीडियो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है ना आपको, है ना, ये आप इसको देखेंगे। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दिखा दी है, बट स्टिल यू इफ यू वांट टू सी दिस यू कैन सी इट एट योर होम। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन ई आपको नहीं करना, ठीक है, क्वेश्चन ई को आप सिर्फ समझेंगे, ठीक है, हाउसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, but question number A, B, C, D you have to do in your notebook, and I will create an assignment and you have to upload that assignment by Sunday or Monday. Okay, so let's finish this class. Yes beta bolo. Yes मैं चाह रही थी कि bolo. आपकी वर्कशीट सेंड करोगे। बेटा इंटरनेट कनेक्शन आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है दृष्टि, बेटा आप दिखवा लो प्लीज अपना कनेक्शन, बिकॉज बाकी सब बच्चों को दिख रही है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड। उसमें बेटा मैं अपनी साइड से आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, आप अपनी तरफ से दिखवा लो। आप वाईफाई के थ्रू देखते हो या फिर मोबाइल डेटा? मैम दृष्टि आई कैन नॉट हियर यू, आपकी आवाज भी नहीं आ रही मुझे। दृष्टि आई कैन नॉट हियर यू। दृष्टि आई कैन नॉट हियर यू बेटा। आपके लिए आपकी EVS वर्कशीट शेल्टर चैप्टर आई विल मेंशन इन द असाइनमेंट, EVS वर्कशीट चैप्टर शेल्टर, ठीक है, यू हैव टू अपलोड आफ्टर डूइंग दैट वर्क इन योर नोटबुक। ठीक है, चलिए लेट्स end this class and we will meet in the next class. I will ask you the importance of Teachers Day. मैं आप सबसे पूछूंगी टीचर्स डे की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। Tomorrow is the Teachers Day. If anybody wants to share their thoughts on Teachers Day, they are welcome. Thank you. Okay, let's meet in the next meeting. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.